Hello, good morning, children. It's 8 o'clock. Children, it's 8 o'clock and daytime. What you can see in this sky this time? Morning में आपको sky में daytime में क्या दिखता है? Of course, sun. You can see sun daytime. And what does sun gives us? Sun gives us light and heat. Children, we are going to start today a new chapter where we will learn about light, sound, and force. One by one, we will read these topics. In your book, it is on page number 92. Page number 92. But this time, no need to open. I am explaining and I am sharing the book pages also from where you can see this. Okay, children? This is the lesson light, sound, and force, lesson number 10. What we will learn in this lesson? What gives us light? In daytime, the sun gives us light. But when there is night, you also get light inside your house. From where? You are man-made things that gives light at the night also, and how light help us to see the things, and how shadows are formed, different types of sounds, meaning of force, work, and energy. These all things we will read one by one. Children, here we will learn about lights and its sources. Children, what is the main source of light? And that is natural. Just now I have told you, of course, sun. On the earth, the sun is the main source of light and it's present in nature. Children, think one thing. Can you find your shoes in a dark room easily? आपका एक रूम है जो बिल्कुल डार्क है, देयर इज नो लाइट एंड यू वांट टू फाइंड योर शूज, बुक्स, कॉपीज. कैन यू फाइंड इट? No, you need light to see them. Just you switch on the light and then you will be able to find that your things easily. We get the light from the sun. From where we get light? We get light from the sun. And at night we get light through the electric bulbs. आपके रूम में LEDs होती हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स and candles, oil lamps, objects that gives us light. Children, do you know the objects means things that gives out light are called luminous object. What are luminous objects? The objects which give out light. जो लाइट बाहर देते हैं, they all are called luminous object. Here you can see the picture of many luminous object. What is this? Is candle. Candle gives out light. ये light देती है. This is lamp. This lamps give out light. Yes, that's why it is a luminous object. And here is sun. The sun gives us light. So sun is also the main source of luminous light. And this is the lamp, lantern, lamp, oil lamp. This gives us light. And here you can see in this picture, this is the LED light that gives us light. You all can see in your rooms. There will be either bulb, tube light, or this type of LED. It means what we have learned, the objects which give us light are called luminous object. What we have learned here? हम लोगों ने क्या सीखा? Objects जो light देते हैं, they are called luminous object. Now tell me the example of luminous object. One natural luminous object. Of course, sun. That is the main source of light. And other luminous objects which are made by man? Candle, torch, mobile. Nowadays we are using mobile phones, torch also, na? And electric bulb, tube lights,
oil lamps, they all are the luminous object. And we need a light na beta. How you will read? Can you imagine your a life without light? क्या लाइट के बिना जिंदगी पॉसिबल है? नो. इन ओल्डन डेज, बहुत पहले, इन अर्ली ह्यूमन बीइंग जब थे, देयर वाज नो लाइट. नोबडी हैज इन्वेंटेड. हाँ. एंड हु इन्वेंटेड द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब? जीके में आपने पढ़ा होगा. थॉमस एल्वा एडिसन. ऑफ कोर्स यू आर राइट. थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब को डिस्कवर किया था. वो उसके बाद से लाइट आ गई. यस चिल्ड्रन, लाइट आने से ह्यूमन बीइंग का लाइफ में नया मोड़ आया. What happened? We started our working hours increases. We started to do our work in the night also. If there was no light in olden days, people stops all activities as the sunset. सनसेट हो जाता था, पीपल की सारी एक्टिविटी बंद हो जाती थी. बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट लाइट. एंड यू ऑल हैव लर्न अबाउट द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Objects which give us light are called luminous object. Luminous का मतलब क्या होता है? जो लाइट प्रदान करते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है, the things that emit light, जो emit लाइट को emit करते हैं, they are called luminous object. Let's read about the other thing. Children, and there are many objects that do not give out light are called non-luminous object. और objects जो light नहीं देते हैं, they are lot in number. All the objects, those who do not give light are called non-luminous object. We can see them only when the light from a luminous object falls on them. You have understood बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? These are the things. क्या कैप से लाइट आती है, चेयर से आती है, एप्पल गिव्स लाइट, बुक गिव्स लाइट, और इज दिस बैग? नो. These all things do not give us light. We can't see them. हम इनको कब देख पाते हैं? When light from a luminous object falls on it. यदि इस पे सन की लाइट पड़ेगी तभी हम चेयर को देख सकते हैं. और there will be light of any luminous object. Torch की light में, in the light of candle, in the light of lamp, we can see these things. To see these all non-luminous things, we need a light of luminous object. ठीक है? Do you have understood what is the meaning of this thing बेटा? इसका मतलब आपने समझा? Suppose this is a book. ये बुक है. हाँ, ये मुझे अभी दिख रहा है. इफ आई विल स्विच ऑफ द लाइट, मैं इस रूम की लाइट बंद कर दूं, तो क्या यू विल बी एबल टू सी दिस बुक? आपको ये बुक, ये बॉक्स, ये कुछ दिखेगा? नो. ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. दे डू नॉट गिव आउट लाइट. ये लाइट तो दिखाते नहीं है, बाहर देते नहीं है हमको. सो दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. एंड वी कैन सी ओनली द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट when there will be any light falls on it through luminous object. या तो डे नाइट में हम दिखाएंगे तो हम किन चीजों को देख सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? आपको दिखा? व्हाट इज द डिफरेंस? द ऑब्जेक्ट हमको लाइट देते हैं, दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट्स मीन्स थिंग्स जो लाइट नहीं देते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. And children, how we can see the things? हमको चीजें दिखती कैसी हैं पता आपको? Light travels in a straight line. हमेशा लाइट सीधी दिशा में चलता है. A non-luminous object such as an apple does not allow light to pass through it. क्या होता है? क्या लाइट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या वो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं? नहीं. Then light get reflects. क्या होता है? इन पे से देखो, ये एप्पल है, एप्पल पे ये ट्यूबलाइट की लाइट पड़ी, ये इसको पास नहीं होने देगा. क्यों? बिकॉज ऑल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ टू पास. एप्पल के उस तरफ क्या लाइट जा सकती है? नो. तो लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गई. देखो, ये लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, ये आई, एप्पल से टच हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई. रिफ्लेक्ट हो गई मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया. इस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में चली गई.
then you will be able to see the things. कोई भी चीज हमें कभी दिखती है. We see the objects when the light reflects from these objects falls on your eyes. जब इसमें से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में जाएगी, then you will be able to see this apple. अगर इस पे लाइट नहीं पड़ रही तो आप नहीं देख पाओगे. और if it reflects and come to your eyes, then only you can see. And children, you can see that light travels in a straight line. Straight lines. ये जो सन की लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में केवल ट्रेवल करती है. आप इसके बीच में कोई चीज ला दो, आप कोई चीज ला दो तो आप नहीं देख पाओगे. क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि लाइट का रास्ता आपने रोक लिया. When the light reflects on your eyes, you will be able to see. Okay? आपको तभी लाइट दिखती, कोई भी थिंग दिखता है. चिल्ड्रन, अब ये आप इस बुक को क्यों देख पा रहे हो? क्यों देख पा रहे हो? बिकॉज जो ये ट्यूबलाइट से जो रोशनी आ रही है, इसको रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक जा रही है. और लाइट स्ट्रेट लाइट में चल डायरेक्शन में, इसको हम दिखा सकते हैं. मैं अभी आपको दिख रही हूँ, ठीक है? यू आर एबल टू सी मी. अब मैं लाइट और अपने रास्ते में, लाइट और अपने बीच में एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को रख दूं. दिस बुक इज अ नॉन ल्यूमिनस. इट कैन नॉट बी. कैन यू सी मी? नो. व्हाई यू कैन नॉट सी मी? You can see only book because the light from this luminous object, that is tube light in this room, coming and reflects and goes to your eyes. You are not able to see me because this non-luminous object do not allow light to pass. But as I have removed, you can see me now. This shows कि light straight direction में चलता है. अगर लाइट, अब मैं किसी दो चीज के बीच में अगर मैं कोई दूसरा तीसरा ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाती हूँ, we can't see that. What does this shows? That shows that light travels in a straight direction. You can check yourself also. आप अपना विंडो में से सन को देख रहे हो. When you close the window, आप विंडो को क्लोज कर दो, are you able to see the sun? No. क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जो आपका विंडो पैन था, जो विंडो का डोर था, वो वुड या आयरन का बना हुआ था. And that was non-luminous. उसने लाइट को अंदर आने को अलाउ ही नहीं किया. तो जब अलाउ नहीं किया, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई नहीं, आपके आईज पे लाइट वो वाली रिफ्लेक्ट होकर आई ही नहीं, तो आपको वो चीज दिखेगी ही नहीं. Anything can be seen only when the light that reflects on it passes to your eyes. You can see in this picture, you can see an apple. आप क्यों एप्पल को देख पा रहे हो? बिकॉज द लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में आ रही है. ओके, सपोज एक सिचुएशन देखो, इस विंडो को क्लोज कर दूं तो क्या आपको लाइट दिखेगी, सन दिखेगा? नो. क्यों नहीं दिखेगा? कि सन तो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, सनलाइट तो सीधे चलती है. और जब हमने इसको यहाँ पे इससे विंडो पैन, ये विंडो का डोर बंद कर दिया, तो लाइट हमको दिखेगी नहीं, सनलाइट हमारे आईज पे नहीं फॉल होगी, तो वी कैन नॉट सी देम. तो आपको पता चल गया हाउ कैन वी सी द थिंग्स. ओके, व्हेन एनी non-luminous objects reflects the light and the reflected light when come on our eyes, we can see the things. It means when this reflected light falls on your eyes, we are able to see an apple. ये केवल एप्पल के लिए ये बात नहीं, ये सभी non-luminous things के लिए है. Light. And children, do you know shadow? Shadow मतलब परछाई. When an object or an things blocks the path of light, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है. और ये गर्ल क्या है, ये सन से जो स्ट्रेट लाइट आ रही है, जो ऐसे स्ट्रेट लाइट आ रही है, उसको रोकती है, जब पाथ को ब्लॉक करती है. ब्लॉक करना मतलब रोक देना. तो उसका शैडो बनता है ऑपोजिट साइड में. यू कैन सी परछाई. ये देखो, ये शैडो कब बनता है? जब सन की लाइट को कोई ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस थिंग ब्लॉक करती है, तो उस थिंग का, जो थिंग ब्लॉक करती है, आप इसके सामने यदि बुक ला दोगे कोई बड़ी चीज, तो उसका शैडो बन जाएगा. दैट इज कॉल्ड शैडो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग
block the path of light, a dark patch is formed. ब्लैकिश ग्रेइश कलर का एक पैच जैसा उस चीज का आकार बनता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट. देखो लाइट इधर से आई थी, शेडो कहाँ बना, उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे. दो दिस डार्क पैच इज कॉल्ड शैडो. और जो डार्क पैच मतलब निशान, जो डार्क कलर का ये जो बना, इसको क्या कहते हैं, शैडो. चिल्ड्रन, हैव यू नोटिस, आपने देखा है your shadow when you are out in the sun, you can also see your shadow in a candlelit room. आप जब सन के में बाहर होते हो, खेलते हो, तो भी आपको अपना शेडो दिखता है ना इवनिंग में आपको. यू कैन ऑल्सो सी शेडो इन कैंडललिट रूम. एक ऐसा रूम जिसमें कैंडल जल रही है, हाँ, वहां पे भी आपको शेडो दिखता है. शेडो मतलब क्या है, डार्क कलर पैच, परछाई जिसको आप कहते हो. और ये इसका साइज और डिफरेंट करता है. कभी आपको शैडो छोटी दिखती है, कभी आपको शैडो बहुत लंबी दिखती है. होता है ना ऐसा. समटाइम अ शैडो लुक्स वेरी लॉन्ग. आपको शैडो बहुत बड़ी दिखती है, और कभी कभी क्या होता है, शैडो बहुत छोटी दिखती है. चिल्ड्रन, यू नो द साइज ऑफ योर शैडो, इसका मतलब क्या हुआ, द साइज ऑफ द शैडो कीप्स चेंजिंग. वो हमेशा बदलती रहती है. समटाइम इट इज लॉन्गर, कभी कभी ये शैडो बहुत बड़ी आपको दिखेगी, लॉन्गर. एंड समटाइम इट्स लुक्स शॉर्टर, छोटी दिखती है. द साइज ऑफ योर शैडो चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई. स्काई में क्या होता है, सन ईस्ट में निकलता है बेटा, और वेस्ट में सेट होता है. पूरब से निकल के पश्चिम में जाता है, आप सब लोग जानते हैं. मॉर्निंग में ये सन नीचे होता है, आफ्टरनून में सन आपके हेड के ऊपर यहाँ पे होता है. ये सन इधर से निकला ईस्ट से, धीरे 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 यहाँ होते होते इधर पे जाकर के सेट हो जाएगा ना. द लेंथ ऑफ द शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग, एंड व्हेन सन को, सन आपके यहाँ पे जाता है हेड पे, देन इट इज शॉर्टेस्ट इन द नून. आफ्टरनून में आपकी शैडो सबसे छोटी बनेगी, एंड इट्स बिकम लॉन्ग अगेन इन द इवनिंग. जब सन फिर इवनिंग में चला जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा, देन शैडो लॉन्ग बनेगी. आपसे जितना दूर सन रह रहा है, मॉर्निंग में सन आपसे ज्यादा दूर है और इवनिंग में दूर है, तो आपकी शैडो कैसी बनी, लॉन्ग बनी. एंड आफ्टरनून में क्या हुआ, शैडो आपके हेड के जस्ट ऊपर हो गई, देन द शैडो इज शॉर्टेस्ट. शैडो कब शॉर्टेस्ट होता है बेटा, नून में. ठीक है. द साइज ऑफ योर शैडो कीप चेंजिंग, बदलता रहता है. समटाइम इट इज लॉन्गर एंड समटाइम इट इज शॉर्टर देन यू. आप जितने लंबे हो, कभी आपसे बहुत लंबी शैडो बनती है, कभी आपसे छोटी बन जाती है. द साइज ऑफ योर शैडो चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ द सन. सन की पोजीशन की वजह से ही ऐसा होता है. द लेंथ ऑफ द शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग. ये आप ट्री देख रहे हो, ये जब ईस्ट में सनराइज हो रहा है मॉर्निंग में, तो इस ट्री का शैडो लॉन्ग बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना. बट इन द नून, जब आफ्टरनून में यही सन बीच में चला गया, एकदम आपके हेड के ऊपर, तो ये शैडो छोटा हो गया. अगेन एंड इवनिंग में जब इस साइड आ गया, अगेन शैडो बड़ा हो गया. ठीक है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड that the size of the shadow depend upon the position of the light. Children, one activity you have to do, you will need a chalk and a measuring tape, or go to a playground. Playground मतलब बाहर में आप जाके अपने टेरिस पे भी ये कुछ कर सकते हो. 9 o'clock in the morning, मॉर्निंग में 9 o'clock पे draw a small circle in the ground and stand in a circle. आप एक सर्कल छोटा सा बनाओ, उस सर्कल में खड़े हो जाओ. आस्क अ फ्रेंड, या घर में कोई की है उसको बोलो, मेजर द लेंथ ऑफ योर शैडो. आपका शैडो बनेगा. आप ऐसा एक नोट करो कि आप कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर के शैडो आपका बना, आप उस लेंथ को नाप लो. रिपीट दिस एक्टिविटी एट 4:30 एट 12 नून. फिर आप 12 बजे दोपहर को जाओ, फिर अपनी लंबाई को नापो, उसी गोले में सेम सर्कल में आप जाके खड़े हो, फिर अपनी शैडो को नापो. फिर इवनिंग में आप 4:30 पे जाओ, और फिर 4:30 इवनिंग पे अपनी लंबाई, शैडो की लंबाई, किसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, शैडो की लंबाई. What you will see when is the length of your shadow is longest, morning or evening में, and when it is shortest,
आफ्टरनून में। क्यों? आफ्टरनून में सन आपके हेड के ऊपर आ गया, आपके पास आ गया, तो शैडो आपकी शॉर्ट हो गई। बट नाइट मॉर्निंग और इवनिंग में दूर हो गया। यू ऑल विल डू दिस। आप ये जरा अपनी लेंथ मेजर करके जरा बताना मुझे कि आपका ये क्या होता है, कैसा चेंज होता है। यू विल डू दिस बेटा, ओके। टुडे वी हैव कम टू नो अबाउट मेनी फैक्ट्स। आपको बहुत सारी नई बातें आज पता चली ना बेटा, कि शैडो ऑफ द लाइट का क्या प्रोड्यूस करती है? शैडो प्रोड्यूस करती है। और कब शैडो बनता है? शैडो बनता कब है बेटा? जब लाइट और के रास्ते में कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आता है, तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। शैडो किसकी बनती है? ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। हाँ एंड चिल्ड्रन, आप जो है अभी मैं यहाँ व्हाट इस कंडीशन में नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप ऐसे अपनी फिंगर्स को टच करना और आप लाइट की डायरेक्शन, टॉर्च से एक लाइट जलाना, और जब आप ऐसे वॉल पे करोगे तो वॉल पे शैडो बनती है। आई होप हियर यू कैन, आई एम गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। नो बट यू आर नॉट एबल टू सी द शैडोज ना। क्या आपको शैडो दिख रही है? नो, बिकॉज द लाइट इज वेरी डीम, लाइट बहुत डार्क हो रही है। जब आप अपने रूम में करके ये देखोगे तो आपको शेडो यहाँ तो नहीं बनती हुई सी दिख रही है बेटा, बट यू कैन सी दिस इज क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा लिमिटेड है ना ऑन द वॉल आउटसाइड, जो हमारे कैमरे से बाहर जा रहा है। ये देखो थोड़ा सा, ये देखो नाउ, यस यू कैन सी द शेडो। आपको पीछे शेडो दिखी मेरे हाथ की? ये देखो, जैसे जैसे अब मैं हट रही हूँ, ये क्या हो रहा है? जो लाइट ट्यूबलाइट की सीधे आ रही थी, जो लाइट मेरे रूम में आ रही थी, उसके और वॉल के बीच में हमने क्या, मेरा ये हाथ आ गया, तो इस हाथ का शेडो बनने लगा। आपने देखा ये क्या बना? वॉल पे क्या बना? मेरे हाथ का शेडो। और शेडो बनने के लिए एक सरफेस जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a surface is needed. You all can see this shadow formation. आपको शेडो बनता हुआ सा दिख रहा है। यू कैन प्ले एंड बार्किंग डॉग आप ऐसे बना सकते हो, बर्ड फ्लाई करती हुई ऐसे ऐसे देखो, बर्ड फ्लाई करती हुई बना सकते हो। हाँ, यू कैन सी द शेडो। शेडो बनाने के लिए क्या है? जो लाइट का पाथ है और इस वॉल के बीच में मेरा हाथ आ गया, एंड इट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये लाइट को पास होने नहीं दे रहा है। जब लाइट को पास होने नहीं दे रहा है तो इसका शेडो वॉल पे बन जा रहा है। ओके, दिस इज द शेडो फॉर्मेशन। You all have understood about the shadow. You will do that activity. करोगे ना आप? Okay? Meet you soon in the next class. Children, read this chapter again and again. It is in your book, lesson number 10, page number 92, 93, 94. You have to read again and again. Meet you soon in the next class and try to make the shadows. आप खूब सारे shadow बना के try करोगे, हाँ?